Okay, so let me start the group discussion and let me give you the topic. I'll give you a topic and then you will have 2-3 minutes to think. You have a pen and paper with you, so make use of a pen and paper and jot down important points. Throughout the discussion, also you should keep on noting those points so that you can conclude very well. So the topic for the discussion today is this relevance of school in era of online education. So relevance of school, what is the relevance of the schools in era of online education? So what is the relevance of the schools in the era of online education? Think over it. And when your discussion starts, you should be visible. So I give you 2 minutes exactly. And since house is 8 students, so we will keep it 20 minutes strictly discussion. So topic is relevance of schools in era of online education. टॉपिक क्या है? Topic is relevance of schools in era of online education. It is in the chat box also. Please see that. Relevance of schools in era of school education. Как было помогать? So, keeping in line with what actually you are going to face there, they will give you 2 minutes, something like this. And after that, you will start it, but I'll give you instructions. So, as I always told you that you should try to speak because this is a practice sessions going on. Even if you find that you are not in position to talk, you should try to talk. Need not to cut anybody, need not to create chaos. The point, and you should try to basically give your points. And you have pen and paper with you. Try to jot down also whatever you say, so that if you get opportunity to conclude, you are in position to conclude that. Now, please unmute each one of you. Uday, Nitesh, Ramakant, Vijay, please unmute yourself and start the discussion now.
Yes. Good morning, Hello friends. everyone. Thank you everyone to give me opportunity to start our group discussion. आज का हमारा टॉपिक है relevance of skill in era of online education. जैसा हम सब जानते हैं कि ड्यूरिंग कोविड और आफ्टर कोविड ऑनलाइन एजुकेशन का कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन किया गया है, उसमें स्कूल का भी एक मेजर योगदान हमें देखने को मिला है। क्योंकि ड्यूरिंग कोविड जब बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे तो उनको ऑनलाइन एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती थी। और आज भी हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन एजुकेशन का स्कूल डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। पर हमने कभी कभी ये भी देखा है कि इसका किसी का तरीके से मिसयूज भी होता है, बच्चे डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं। तो हमने इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देखे हैं। तो आई थिंक everyone need come forward and give their valuable points for this point. Yes. मैं So, इसका डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि what happened? जो एजुकेशन स्कूलिंग एजुकेशन पॉइंट्स को शेयर करना चाहूंगा। स्कूल एजुकेशन आपको सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटीज और बहुत सारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज प्रोवाइड करती है। स्कूल जाने से एक स्टूडेंट ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होता है, उसको प्रोजेक्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीजें बच्चे में शुरू से ही डेवलप होती चली जाती हैं। इसके अलावा मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगा जब कोई बच्चा स्कूल जाता है वो वहाँ सिर्फ एजुकेशन ही नहीं लर्न करता कि सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, वही फ्रेंड बनाना सीखता है, हमें कैसे डील बच्चों के साथ कैसे रिलेशन बना के रखते हैं। हम बहुत चीज सीखने को मिलती है, रिलेशन कैसे बनाना है, कैसे हमें लोगों से अपने रिलेशन अच्छे कर सकते हैं, टीचर से रिलेशन एटिकेट्स वगैरह सीखते हैं। हमें होलिस्टिक पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट मिलता है एजुकेशन जाने से। ऑनलाइन सिस्टम ऐसा मैं नहीं है। इसमें एक और चीज ऐड करूंगा कि इसमें टीचर्स हमारे फेशियल एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं। अगर टीचर्स टीच कर रहे हैं तो but also at the same time they also participate in the sports so that their physical body has developed, and participating in sports gives the immense discipline and never give up ability also learned through the sports and extracurricular I activities. would also like to add in this कैसे that कोऑर्डिनेशन करना है, कोई भी हमें प्रोजेक्ट अगर को भी मिलता है बहुत तो हेल्प करता है। कैसे सीखते हैं उसमें। जो टीचर्स होते हैं हमारे, उनके लिए भी बहुत हेल्प होता है, बिकॉज टीचर्स मैं इसमें एक और पॉइंट गाइस ऐड करना चाहूंगा कि गाइस इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जैसा हम सब जानते हैं कि कुछ स्कूल्स and he या can कुछ share his problems and questions he can ask even after the classes that एजुकेशन की वजह से जो चिल्ड्रन है उसका काफी जल्दी एक्सपोजर हो जाता है इंटरनेट के साथ। उसी की वजह से ड्यू टू दिस अर्ली एक्सपोजर टू इंटरनेट उनका जो डिस्ट्रैक्शन वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब जो चीज जैसे कि सोशल मीडिया जिसकी इतने जल्दी जो कम एज में जो जरूरत नहीं है सोशल मीडिया की, यूट्यूब और सब जो बाकी चीजें हैं की जरूरत नहीं है। और जो उसका जो लोनलीनेस है वो भी बढ़ जाएगा क्योंकि उसका जो इंटरेक्शन है विद अदर फ्रेंड्स टीचर्स वो भी कम हो जाएगा। इसके वजह से मुझे लगता है कि इसमें जाने पे क्या होता है कि केवल एजुकेशन के अलावा बाकी और भी डेवलपमेंट होता है। जैसे कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है, हाउ टू कम्युनिकेट विद, हाउ टू मेक फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ एंड to make good friends. Most of the friends we know are from the schools that live with Friends, I would like to मैं add इसमें something एक पॉइंट बोलना चाहूंगा कि जैसे आप सब जानते हैं कि जो हमारे स्कूल भी है, गवर्नमेंट स्कूल है, उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होता है। वो अपना कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। या अब जैसे मैं बता रहा था कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है कुछ स्कूलों में, खास करके हम लोग जो गवर्नमेंट स्कूल्स देखते हैं वहां पर अभी भी हमारे पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी का क्रंच है, जिसके कारण क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एजुकेशन के सिस्टम से लैग कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया है। जो सिटीज के बच्चे वो ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं, पर रूरल एरिया के बच्चों के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने का बहुत तरीके से लैग भी कर रहे हैं। इसके अलावा एक और मैं प्रॉब्लम भी आती है, कई बार वहाँ पे अच्छे टीचर अवेलेबल नहीं होते हैं, टीचर्स जो होते हैं स्कूल में सुविधाएं अवेलेबल नहीं होती, इसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन बहुत मदद करते हैं। हेल्प कर सकता है। ऑनलाइन एजुकेशन में उसकी वजह से आई कई बार प्रॉब्लम, कैमरा ऑफ रहता आई है वीकनेस और बैक प्रॉब्लम और जो बाकी फिजिकल एक्टिविटी वो भी कम हो जाए क्योंकि मिनिमल जो हैंड का लेग का बॉडी का कम मूवमेंट होगा और लॉन्ग स्क्रीन टाइम की वजह से उनके आई पे भी इफेक्ट पड़ेगा, बैक पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ओवरऑल बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो भी कम हो जाएगा। फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ना होने की वजह से ऑनलाइन इसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है बच्चों का, जिसकी वजह से वो इंटरेस्ट डिक्लाइन कर जाता है एजुकेशन में। टीचर से और अपने स्टूडेंट से मैं कह रहा हूँ इंटरेक्शन फ्रेंड्स करते हैं, कि जिससे वो सोशल
मैं ये कह सोशल रहा हूँ स्किल फ्रेंड्स कि उनका हमारे डेवलप होता है। टीचर्स हमारा तो फेशियल एक्सप्रेशन देख पाते हैं वहां पे, इससे हमारे टीचर्स वहीं पे हमें हेल्प कर देते हैं, लेकिन हमें ऑनलाइन एजुकेशन में ये चीज नहीं मिल पाती है। बच्चा कुछ भी कर रहा हो हमें पता नहीं चलता है, पेरेंट्स को पल एंड पल नजर रखनी पड़ती है। ऑनलाइन इंटरपर्सनल एजुकेशन स्किल भी में डेवलप मेरे होती है हमारी, ऑनलाइन के एजुकेशन इंटरपर्सनल साथ स्किल भी अपना डेवलप होती ओवरऑल है। डेवलपमेंट भी नहीं हो चीटिंग पाता, की जो कि चांसेस जैसे ज्यादा स्कूल होती में है। जो प्लेग्राउंड बच्चे अवेलेबल है, शुरुआत के प्राइमरी वहाँ पे एजुकेशन में उनकी है, स्पोर्ट्स वो एक्टिविटी की लोग जा सकती है। अपना होमवर्क ऑनलाइन मैं एजुकेशन में ऐड अपना करना होमवर्क भी चाहूंगा कि कॉपी पेस्ट जैसे जब करके डाल देते हैं, लेकिन स्कूल में रहता है वो, स्कूल में इंटरेक्शन के कारण वो लोग उनका चीट भी पकड़ा जा सकता है। तो वो लोग थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन दे आर एक्चुअली चीटिंग, नॉट कंप्लीटिंग देयर वर्क, बट यस एट द सेम टाइम if in school they also need to complete their homework and they ऑनलाइन learn एजुकेशन properly. में कई बार ऐसा भी होता है कि एंड जैसे अपन कभी किसी टाइम पे अपन ऐसा कर देते हैं कि अपना ध्यान पढ़ाई में नहीं है और उस पर ध्यान ज्यादा जाता है, तो काफी डिस्ट्रैक्शन होने की संभावना है ऑनलाइन हमने इसमें बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया है, so let's talk about the positive points about the online education system in school. I think ये बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो काफी फार रहते हैं स्कूल से, तो उनको आने जाने का जो ट्रैवलिंग टाइम होता है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण और वो इफेक्टिवली अपने टाइम को किसी दूसरे पर्पस, एजुकेशन पर्पस या डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर पाते हैं। एंड वन मोर पॉइंट इन बट दिस दैट शुड कि बी हमारे विद जो अच्छे टीचर्स हैं पेरेंट्स वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल। ऑडियंस तक रीच कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कितने अच्छे टीचर्स की कमी है हमारे यहाँ पे, तो इससे फायदा होगा ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को और रीच करने में। हैंडीकैप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है ऑनलाइन एजुकेशन। जो लोग अगर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम किसी तरह की, वो फिजिकली किसी तरह की प्रॉब्लम हो, डिस्पेयर उनके बॉडी में कुछ भी, तो उनके लिए एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छी बात है। प्लस अपने घर पे रह के वो एक्सेस कर सकते हैं एजुकेशन का। Yes, Yes, right. मैं And और the बताना other चाहूंगा कि foundation ऑनलाइन courses because like JEE and due NEET, to it online can education, be they will lose provided to due to the online part education, areas. they will lose discipline. क्योंकि जब हम स्कूल में जाते हैं, फिजिकली जाते हैं, तो काफी अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, सब नीट एंड टाई करके जाते हैं। बट जब ऑनलाइन एजुकेशन होता है तो हो सकता है कि वो 5 बजे 5 मिनट पहले उठ जाए, 5 मिनट पहले रेडी हो जाए। उसकी वजह से उसका डिसिप्लिन जो है वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा, जो लॉन्ग टर्म लाइफ में उसको काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। Yes. क्योंकि वो डिसिप्लिन अगर बचपन में डिसिप्लिन नहीं होता है बच्चा, तो आगे जाके बहुत मुश्किल होगी इसको। दैट्स वाई ये भी पॉइंट मुझे अच्छा लगता है। और उनके मोरल और तो एथिक्स का भी ध्यान रखना पड़ता है भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर एजुकेशन ऑनलाइन डिसिप्लिन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देंगे बच्चों को, आगे लॉन्ग टर्म में उनको काफी नुकसान होगा। स्कूल जैसे जाने बच्चा से एक स्पोर्ट एक्टिविटी में एक्टिवेट हो पाएगा, और अपना कैसे उस टाइम अदर मैनेजमेंट एक्टिविटी में सीख वो जा पाते हैं, पाएगा। और वो स्पोर्ट्स और कल्चर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के बाद ही उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, वो कम्युनिकेट करते हैं, फ्रेंड्स बनाते Yes, हैं, टीचर अनुराग, से आई एम एग्री विथ यू। स्पोर्ट्स के टीचर थ्रू के भी वो लोग असिस्टेंस में काफी रहते हैं। ज्यादा अपना पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। स्पोर्ट्स काफी कुछ सिखाता है। फर्दर वो लोग ये जी सिखाता है कि आप प्रेशर में कैसे जी वर्क करो और आप कैसे डिसिप्लिन हो सकते हो। तो स्कूल में जाने से बहुत मुझे लगता है कि स्कूल जाने से ज्यादा ओवरऑल पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होती है। मैं इसमें एक चीज ये और ऐड करूंगा कि क्या कर सकते हैं कि जो टीचर लोग होते हैं, पहले जब स्कूल क्लासेस में क्या होता है, टीचर लोग बच्चों को जब एक साथ मिलकर सामने पढ़ाते हैं तो उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर पाते हैं। पर ऑनलाइन में क्या है, अगर ऑनलाइन सिस्टम क्या नेगेटिव पॉइंट है, जब बच्चे को टीचर ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं बिहेवियर वगैरह कैसा है, जो कि बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी अच्छी हेल्थी सोसाइटी के लिए। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, टीचर ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा कैसा बिहेवियर है, जैसे अगर स्कूल में जाते हैं तो इसके अंदर स्कूल में बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, जैसे कि अपन किसी क्राउड के सामने जाके बोलते हैं तो स्टेज परफॉर्मेंस को भी सिखाया जाता है। जैसे कोई अपने जो सुबह सुबह प्रेयर्स होती है तो उसके अंदर लोगों को आगे जाके बोलना सिखाया जाता है कि तुम स्टेज पे आके कैसे बोल सकते हो। इसके अलावा और बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटीज भी होती है जिसके अंदर लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं अच्छे से और किसी एक टास्क को करते हैं। ये अपने ऑनलाइन एजुकेशन में इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है, इससे डेवलपमेंट स्कूल में और ज्यादा अच्छे से और हो पाता है। ऑनलाइन एजुकेशन उनके लिए अच्छा है। बच्चे जब लंच होता है उस समय अगर लोग आप क्या एक देखेंगे दूसरे के खाना शेयर करते हैं, एक तरह से क्वालिटी डेवलप करते हैं, शेयरिंग क्वालिटी डेवलप करता है बच्चों में कि स्कूल में क्या होगा, लंच शेयर करते हैं। इसमें ऐड करना चाहूंगा कि आप देखेंगे अगर हर एक बच्चा होता है वो इंडिविजुअली डिफरेंट होता है, तो उसकी लर्निंग की जो पेस होती है या लर्निंग की स्किल होती है वो डिफरेंट होती है। ऑनलाइन एजुकेशन में ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी पेस के हिसाब से अडॉप्ट कर सके चीजों को और उसके हिसाब से इंप्लीमेंट कर सके। साथ ही साथ कुछ बच्चों को हेजिटेशन होता है क्वेश्चन आंसरिंग में,
पर ऑनलाइन एजुकेशन इनके लिए फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि वो टाइप के द्वारा या फिर डिफरेंट मीडियम के द्वारा भी अपने आप को एबल कर सके कि क्वेश्चनिंग कर सके। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट रमाकांत। I मैं agree. इसमें एक पॉइंट और ऐड अच्छा करूंगा point है, but कि you need to ऑनलाइन change. एजुकेशन I उनके want लिए to add अच्छी है something to Ramakant. जो लोग कि जो जो जेई बच्चा या नीट की इंट्रोवर्ट है, प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्कूल वही काम करता है कि मैं उसको एक जो बात और उसका जो बोलना चाहूंगा इंट्रोवर्टनेस है उसको कम करेगा। रमाकांत इज आल्सो और स्पीकिंग वेरी गुड लेकिन पॉइंट। मैं कम्युनिकेशन फर्दर ऐड करना चाहूंगा अगर अपन कि सुबह की बात ऑनलाइन करें जैसे स्कूल के अंदर एजुकेशन जाते हैं तो इन बच्चे रूरल सुबह एरियाज में में प्रेयरिंग नेटवर्क करते हैं, इशू भी काफी भगवान के क्रिएट सामने होते हैं, हाथ जोड़ के जिससे कुछ ना कुछ बच्चों प्रेयर करते को हैं, तो उसके सामने जो बच्चों को डिवाइन पावर वो नॉलेज फील लेने में करते हैं। और क्लासेस शायद अगर लेने वो में स्कूल काफी ना जाए और ऑनलाइन डिफिकल्टीज पैदा एजुकेशन होती लेते है। रहे तो शायद वो चीज नहीं फील कर पाएंगे। मैं तो इसमें अपने को एक और पॉइंट ऐड I करूंगा want to add कि one more जो point बच्चे here, that आगे through online कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स education, की इंट्रोवर्ट है या people प्रिपरेशन are कर रहे हैं। constrained and इससे suffering पढ़ from रहा है, network issues. वो जो बच्चा अगर मैसेज करेगा या फिर ऑनलाइन एजुकेशन से किसी इनपुट देगा, मतलब या फिर टीचर को डीएम करेगा, उसकी उसका जो उसका जो इंट्रोवर्टनेस है वो और बढ़ेगा, जो कि कम होना चाहिए। एक्चुअली अगर इंट्रोवर्ट होता है तो उससे पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट है वो उतना नहीं हो पाएगा। और जो स्कूल में अगर मैं इस बात पे सहमत करना चाहूंगा क्योंकि अगर जब ऑनलाइन एजुकेशन होती है तो लोग अधिकतर बस टाइप करके आंसर दे देते हैं, लेकिन जब स्कूल जाते हैं तो प्रॉपर ढंग से सबके साथ के नॉलेज आंसर नहीं मिल देते हैं। पाती है क्योंकि नेटवर्क इशू क्रिएट होता है वहाँ पे। मैं एक मैं पॉइंट और इसमें ऐड एक और करना पॉजिटिव चाहूंगा पॉइंट ऐड जैसे करना जैसे चाहूंगा अभी अगर अपन अभी ऑनलाइन रमाकांत ने कहा ऑनलाइन कि एजुकेशन की बात करें जो लोग तो अगर अपन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बच्चे अगर एग्जाम देने जाएंगे ऑनलाइन में तो माइट चांस है कि बच्चे नकल करें किसी और सोर्स का इस्तेमाल करें पे एग्जाम देने के लिए, जिससे उसका एक्चुअल और पोटेंशियल सबसे अपन बड़ी माइट बात में मैं नहीं एक यूज कर पॉइंट और पाएंगे। ऐड करूंगा आई एम जो एग्री अभी विथ यू। एंड सबसे बड़ी आपने बात कहा ये है कि एजुकेशन लेने के वक्त नेटवर्क इश्यूज रूरल एरियाज में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बस मेट्रो सिटी वाले लोग ज्यादा स्पीड डेटा के साथ उनके पास डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो जाता है क्योंकि वो लोग के पास नेटवर्क इशू नहीं होता है। वो लोग नॉलेज को उनके पास क्लासेस में डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। तो ऑनलाइन एजुकेशन में एक इंटरनेट क्रिएट इशू के कारण डिस्टरबेंस क्रिएट होती है जिससे नॉलेज वो लोग ढंग से नहीं ले पाते, उनकी क्लासेस ढंग से मैं नहीं एक चल पॉइंट मैं और ऐड इसका करूंगा नेगेटिव पॉइंट ये जैसे बताना कि चाहूंगा कि अगर पॉजिटिव बच्चे को पॉइंट अगर अर्ली एज से कि ऑनलाइन जो लोग एजुकेशन में जेई अगर की फेमिलियर हो प्रिपरेशन कर जाएंगे रहे हैं तो उनकी जो लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत उनको वो फायदा मिलता है चाहे खासकर हो, वो क्योंकि छठी से उन 12वीं लोगों तक को के अच्छे टीचर ऑनलाइन मिल कोर्सेज पाते एजुकेशन हैं। में एक अगर पॉजिटिव अच्छे पॉइंट ऐड टीचर्स करना नहीं चाहूंगा मिलेंगे गाइस कि अगर आप लोग देखेंगे ऑनलाइन एजुकेशन में क्या होता है, कई बार ग्रुपिंग भी क्रिएट होती है। जैसे क्या होता है, बच्चे अगर डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के हैं ना, वो आपस में एक साथ मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं जिससे नॉलेज शेयरिंग की अपॉर्चुनिटी ज्यादा क्रिएट हो पाती है और वो ज्यादा अच्छे तरीके से एक दूसरे को जान पाते हैं। बस ये क्या है ना, ये ऑनलाइन एजुकेशन ये नेगेटिव एक पॉइंट है। बात मैं और ऐड बच्चों को करना अगर चाहूंगा, अगर अर्ली बच्चे एज से ही अगर अगर स्कूल में ऑनलाइन नहीं एजुकेशन जाएंगे, सिस्टम अगर जोड़ बच्चे घर देंगे पे तो रहेंगे, उसका स्कूल क्या में करेगा, जाएंगे ये तो अलग एडिक्शन अलग बढ़ा देगा। एडिक्शन से अलग दूर रहेगा, अलग मोस्ट ऑफ द अलग टाइम वो स्पेंड करेगा, ऑनलाइन स्पेंड करेगा, बाहर आउटडोर गेम में पार्टिसिपेशन दूर वगैरह हो उसका कम हो जाएगा। सकता उसकी है। वजह से एक तरह से क्या होगा कि एडिक्टेड बना देगा उसका जो इंटरेक्शन सारी विद गैजेट्स वगैरह स्टूडेंट्स से। एंड टीचर होता है वो जाएगा, और जो बच्चा वो काफी लोनली वो फील स्किल करेगा। शायद वो बच्चा अगर नहीं लोनली कभी फील नहीं मैं सीख करेगा पाएगा। तो मैं हो एक सकता पॉइंट है ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। उसी चीज की वजह से डिप्रेशन में जाए, उसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अगर लोनलीनेस आ सकता है तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का भी एक चांस बढ़ पॉइंट सकता मैं है, क्योंकि ऐड बच्चा करूंगा जो यहाँ है पे। वो cope up नहीं कर पाएगा उस लोनलीनेस से। एक 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 तो पॉइंट मैं इसलिए ऐड करना अगर चाहता हूँ जितना यहाँ पे इंटरेक्शन अच्छा कि होता है स्टूडेंट के साथ होता है, ऑनलाइन टीचर्स एजुकेशन के साथ होता है, वो बेटर रहता है। मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा Yes, यहाँ sir, पे sir, कि go ऑनलाइन ahead. एजुकेशन उनके लिए अच्छी है जो लोग किसी सब्जेक्ट को और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं। जैसे किसी को मैथ में ज्यादा इंटरेस्ट है तो उनके लिए वो अच्छी है, या फिर कोई जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, वो लोग अच्छे टीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। बट जो नॉर्मल स्टडी करना चाहता है स्कूल जाके नॉर्मल, उसके लिए कोई ऑनलाइन एजुकेशन की उतनी खास जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो एक रिसोर्स उसके पास कम है तब वो उसको अवेलेबल कर सकता मैं है। एक ऑनलाइन पॉइंट और क्या एजुकेशन करना जो है चाहता हूँ कि बच्चों ऑनलाइन एजुकेशन से एक फायदा एडिक्शन होता है बढ़ा कि देगा, अपन जो एडिक्शन बढ़ा विदेशों की देगा जो कि नॉलेज ज्यादा है, अपना जैसे टाइम वो फॉरेन स्पेंड के अंदर करेंगे। अगर कोई इंस्टीट्यूट में अपनी नॉलेज गेन करना चाहता है तो वो भी अच्छा ऑनलाइन से कर सकता है। या अगर वहां पे उसके जब पास जाने के लिए डेवलपमेंट है इतने इन संसाधन केस ऑफ अवेलेबल नहीं है तो वो ऑनलाइन से फॉरेन की जो इंस्टीट्यूट है उनकी भी नॉलेज ऐड कर सकता है अपने। इसके लिए अंदर बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है करने से। ये एडिक्शन बढ़ा देगा बच्चों, ऑनलाइन ऑनलाइन एजुकेशन एजुकेशन बच्चों के बीच में एडिक्शन बढ़ा देगा। वो मैक्सिमम टाइम अपना जो गैजेट वगैरह यूज करेगा आउटडोर गेम वगैरह के लिए वो मोटिवेट नहीं होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन I का want to यूज कर सकते I हैं want बच्चों to के further लिए add one इजी point. एजुकेशन I'm को agree प्रोवाइड with करने the के Vijay, लिए and I होमवर्क want to को add one more एग्जाम्स को point लेके कुछ that उसमें through online बेहतरी की जा सकती है education and और होमवर्क प्रोवाइड online किया जा सकता है, education नोट्स से प्रोवाइड किए जा सकते हैं। eyes में भी बुरा असर लेकिन पूरी पड़ेगा तरह क्योंकि lot of स्कूल्स the को time डिपेंड नहीं हो जाना चाहिए ऑनलाइन eight एजुकेशन eight के ऊपर। 6 to 8 hours or people are watching on computer and students are watching on computer, their eyes will be affected by this because lot of screen time will problem on the eye. Not only I will be affected, they will यस यस यस। और they समटाइम will ऑनलाइन spend जब क्लासेस होती है तो उसके अंदर they are केओस not भी बहुत हो exposed जाता है। to जैसे
कोई टीचर एक क्वेश्चन पूछता है तो बाकी सब एक साथ आंसर देने लगते हैं, तो इसमें केओस भी बहुत होता है। there is one profit of student that कि
एक्चुअली पेरेंट्स का, क्योंकि जो अगर एजुकेशन ऑनलाइन हो जाता है तो शायद देयर इज पॉसिबिलिटी कि जो स्कूल की फीस है वो भी कम हो जाए, क्योंकि अगर बच्चे स्कूल जाएंगे नहीं तो जो स्कूल है वो कम रिसोर्सेज लगाएगा, जो स्कूल है जो कम रिसोर्सेज लगाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो पेरेंट्स है उनको थोड़ा मॉनिटरी में हेल्प हो जाए। या बट डेफिनेटली अगर फीस के ये पर्सपेक्टिव से पेरेंट्स को देखेंगे तो अफेक्ट हम लोग करेगा कि आजकल उन्हें देख मॉनिटर पाते हैं करना कि पड़ेगा बच्चों को। Yes, ये sir, नहीं you are go ahead. दे आर यूजिंग ऑनलाइन रिसोर्सेज इन अ प्रॉपर मैनर और नॉट, दे आर नॉट मिसयूजिंग दैट, Yes, sir, you are go ahead. दैट्स द पॉइंट। अगर आप लोग Student use online education as excuse to avoid doing any work or involvement in any kind of home activity. They just start saying, "I'm studying. I don't want to do anything. Right now, my class is going on." So they don't participate in home activity. They don't go outside. Don't let या themselves. मैं इसमें एक और नेगेटिव पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि agree कभी कभी हमने क्या देखा है fully कि जो agree with गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है जैसे मिड डे मील या फिर कैफे स्कीम्स होती है, वो सिर्फ जब बच्चे स्कूल में जा पाते हैं तभी उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है न्यूट्रिशन बेनिफिट्स की। पर अगर वो जब घर में ऑनलाइन एजुकेशन लेंगे तो वो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो उनके तक प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाएगी और वो कहीं कहीं यहाँ पर लैग कर जाएंगे न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे रमाकांत, जैसा आपने बोला कि Yes, मिड डे मील Ramakant, I agree with you. You have added a very जो good बच्चे point. गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं उनके लिए होता है, तो वहां पे उन्हें ऑफलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। उनके पास अभी इतना एसेस नहीं है कि वो अभी ऑनलाइन रिसोर्सेज ले सके या फिर ऑनलाइन एजुकेशन में इतना जल्दी शिफ्ट हो सके, तो उनके पास अभी रिसोर्सेज भी नहीं है। इसमें एक बात जो रूरल एरिया के बच्चे जो I want काफी to ज्यादा for सफर कर that I सकते want हैं to add ऑनलाइन one more एजुकेशन, point. क्योंकि उनके पास ना Students फोन are रहता है going ना to कोई school. इंटरनेट रहता है The कि वो teacher ऑनलाइन क्लास को कनेक्ट कर पाएंगे। एज पर जैसे मैंने अपने गांव में ऑब्जर्व किया है कि जो बच्चे हैं उनके पास सच में मोबाइल फोन्स कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, वो ज्वाइन नहीं कर पाते क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी भी उतना सही नहीं होता है। तो जो रूरल एरिया के बच्चे उनका काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा अगर ऑनलाइन एजुकेशन रिलेवेंट बन जाता एक है। ये भी पॉइंट बहुत जरूरी है कि एक पॉइंट ये भी बहुत जरूरी है कि अलग अलग सोशल स्टेटस से बच्चे आते हैं। अपने जितने भी अपने बच्चों पे इंटरनेट ये का फोकस इस्तेमाल नहीं कर करना पाएंगे चाहिए कि मेरा कौन सा अब बच्चा एजुकेशन में हेल्प ज्यादा करने के वीक लिए, है ना कि और पूरी ज्यादा तरह उस पर स्ट्रॉन्ग। डिपेंड तो ये कर देना ऑनलाइन चाहिए। एजुकेशन और में अगर ऐसा करते यूज हैं, करना अगर बहुत पूरी तरह मुश्किल है और खुद इंटरनेट पे पे या ज्यादा फोकस ऑनलाइन करें। रिसोर्सेज पे या डिपेंड हो जाएंगे गाइस, एक आई ये थिंक भी हमने इसके एक पॉजिटिव और पूरी नेगेटिव तरह पॉइंट से डिस्कशन नहीं कर लिए, रहेगा। तो एक आई पॉइंट ये थिंक भी हम लोग जरूरी है। थोड़ा सॉल्यूशन के एक बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि एक कैसे हम लोग सॉल्यूशन बता सकते हैं कि जो इसके ड्रॉबैक्स हैं वो पॉजिटिव आउटकम में कन्वर्ट हो सकें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे, अभी हम लोग बात कर रहे थे डिस्ट्रैक्शन से रिलेटेड चीजों की, तो इसमें एक प्रॉपर पेरेंट्स का गाइडेंस जरूरी हो जाता है, जिससे वो प्रॉपर गाइडेंस करते जाए और बच्चों को समय समय पर बता दीजिए कि कौन सी चीजें सही है उनके लिए, कौन सी चीजें गलत है। तो इस तरीके से इसके पॉजिटिव हो सकते हैं एक तरीके से। एक तरह से, Yes, और Ramakant, I'm agree स्कूल्स के on लोगों को this. ये भी समझना चाहिए। ऑनलाइन इससे मैं एग्री एजुकेशन करता हूँ में कि ऑनलाइन इसके एजुकेशन दोनों में ज्यादा बड़ी बेनिफिट्स और प्रॉब्लम डिमेरिट्स स्कूल के दोनों हैं। टीचर्स की हेल्प और ले वो सकते प्रॉब्लम हैं, ये है चाहे स्कूल्स कोई को स्मार्ट ऑनलाइन एक्सपर्ट एजुकेशन टीचर में हो पूरी जो तरह बच्चों को साइकोलॉजिकल वे में कुछ अच्छा सिखा सके, Okay, कुछ please अच्छा बता conclude सके। now. Please conclude now. Yes, Conclude. sir. Okay, guys, let me take an opportunity to conclude our group discussion. We have very great discussion. We discuss about the various points regarding our topic. तो जैसा हमने आज डिस्कस किया उसमें हमने इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और थोड़े बहुत सॉल्यूशंस के बारे में पॉइंट आउट किया। जहां हमने इसके पॉजिटिव आउटकम में देखा कि जो बच्चे स्कूल से काफी दूर रहते हैं उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। साथ ही साथ इसमें आपको हायर एजुकेशन, आपको अगर स्कूल से अलावा कुछ हायर एजुकेशन के लिए चीजें चाहिए होती है तो वो एक अच्छा मीडियम हो जाता है साथ ही साथ में। एंड इसके अलावा जो बच्चे हेजिटेशन करते हैं, जब उनको क्वेश्चन आंसरिंग में प्रॉब्लम होती है, तो वहां पर भी बच्चों को काफी हेल्प हो जाती है। इसके अलावा रिसोर्सेज जो स्कूल को यूटिलाइज करने पड़ते थे जैसे फैन एंड रेंट और अदर थिंग्स, वो भी काफी कम हो जाता है। वहीं हमने इसके नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में देखा कि बच्चों को डिस्ट्रैक्शन, मेंटल प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम, बेसिकली क्योंकि स्पोर्ट्स में वो काफी लंबे समय तक दूर हो जाते हैं, तो इस तरीके से उनके फिजिकल प्रॉब्लम आ जाती है। एंड जो बच्चों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वो काफी लैग कर रहे हैं, खास करके अर्बन और रूरल एरिया में जो डिफरेंस हमने अभी तक देखा है। इसके साथ देखा कि बच्चों को अर्ली एक्सपोजर के कारण वो कई बार डिफरेंट डोमेन्स पे निकल जाते हैं जो उनके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। तो इसके लिए देखा हमने इसमें कुछ सॉल्यूशन के बारे में बात की, जैसे प्रॉपर पेरेंट्स की गाइडेंस होनी चाहिए, शायद गवर्नमेंट्स को भी काफी अच्छी तरीके से रूल्स और रेगुलेशन बनाने चाहिए। आई थिंक वी ऑल डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट्स। थैंक यू एवरीवन।
Okay, so let me give you the feedback now. I told you many times that conclusion is the easiest pie, and you people are not ready when he will ask you to conclude. The moment 15-20 minutes are over, then you get ready and keep your ear on the observer, because he will tell you to conclude and you should jump for the conclusion. That is the easiest pie. You must have observed when I told you to conclude, everybody was like silent कि करें ना करें. तो conclusion सबसे आसान है. ट्राई टू डू दैट, और उसमें कुछ पॉइंट्स लिखते चले जाओ, कंक्लूजन आसानी से हो जाएगा तुम्हारा. मैं इंडिविजुअली एक एक को फीडबैक दे दूं, उसके बाद मैं टॉपिक के बारे में डिस्कशन करता हूँ. स्टार्टिंग रमाकांत ने की थी, और रमाकांत ने टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन रमाकांत मेरे को नहीं लगता कि टॉपिक वो समझ के आपने इंट्रोड्यूस किया. रमाकांत, टॉपिक कुछ अलग था. टॉपिक था रेलिवेंस ऑफ स्कूल्स इन एरा ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन. तो आप में से कई लोग ऑनलाइन एजुकेशन के प्रॉज एंड कॉन्स गिना रहे हो, कई लोग स्कूल वर्सेस ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हो. इट इज नॉट, आई एम नॉट आस्किंग स्कूल वर्सेस ऑनलाइन, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन एजुकेशन टॉपिक नहीं है. प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन टॉपिक नहीं है. टॉपिक है रेलिवेंस ऑफ स्कूल्स इन एरा ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन. तो तुम सब लोग इसको समझ नहीं पा रहे हो, और मैं तुम्हें ये चीज बोलूंगा कि जब टॉपिक दिया जाता है जीडी का, देन प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट द टॉपिक इज, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स तो तुम्हारे वहीं कट हो जाएंगे जहां तुम टॉपिक को गलत समझ गए और तुमने कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दिया. And majority of you are either criticizing online education or praising schools, और वर्सेस में चले गए तुम. ये टॉपिक वो नहीं था. टॉपिक था कि क्या स्कूल अभी रेलिवेंट है. अब तो ऑनलाइन एजुकेशन भी चल रहा है, तो क्या रेलिवेंट है. एंड आंसर होना चाहिए बिल्कुल रेलिवेंट है सर, इनफैक्ट और रेलिवेंट हो गया अब, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन भी देना स्कूलों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है कहीं ना कहीं. तो इसका जो रमाकांत ने इंट्रोडक्शन किया, दैट वाज, आई मीन ही इंट्रोड्यूस, बट क्लासिफिकेशन वाज नॉट गिवन. मैं अभी तुम्हें एक टिपिकल इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि क्या होना चाहिए था. रमाकांत का बोलने का तरीका अच्छा है. ही कैन टॉक वेल. ही टॉक्ड अबाउट गवर्नमेंट स्कूल वर्सेस private school. Government schools have less infrastructure, so city students are having infrastructure. Maybe Ramakant wanted to tell that government school में वो ऑनलाइन एजुकेशन वाला चीज नहीं है, तो गवर्नमेंट स्कूल में तो जाना ही पड़ेगा बच्चे को. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटरनेट सब लगा है शहरों में, तब भी स्कूल जाने का अपना एक रीजन है और उसका पर्पस है. सो आपने ये भी बोला कि ईच इंडिविजुअल इज डिफरेंट, एंड उसको ऑनलाइन एजुकेशन से वो डिफरेंस को कैटर हो जाता है. सो डिफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल कैन बी टेकन केयर ऑफ थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन. Now, friends, the best introduction would have been, okay, friends, let me initiate the discussion here. The topic given is relevance of schools in the era of online education. Friends, in my opinion, schools are very relevant. And after online education has come now, students have started availing the facility of online education. The relevance of school education has even more increased, because schools are slowly going towards a hybrid model of education, that is offline plus online. Friends, you will all agree with me that there are certain things which cannot be acquired by the child through online education. But at the same time, there are many things which he can, take the online education. When we talk about the development of a child, it can always be categorized as his social development, his physical development, his intellectual development. These three broad categories we can divide. And if you see that for all the developments, holistic development, he needs to be in the school in company with his peer groups, in the friends, students, in presence of the teachers, maybe physical trainers, PT teachers, language teachers, and so many other teachers, and he requires that ecosystem. At the same time, now there are so many things which are extracurricular, like learning French or learning Spanish, which a child wants to do at the comfort of his home. He can do online education also. So yes, the relevance of the school is more, and school should slowly try to provide certain things online education also, like assignments and all can be provided to the students online. So it's a combination of these. Now I open the house for discussion, and maybe we can discuss in the direction of how the education and the development of child can be taken care of in a holistic manner by clubbing the two things together and imparting online tool of education to the school teachers, so that they can make best use of it. Also parents can make use of it, but at the same time school teacher can also make use of it. ये है भाई साहब इसका इंट्रोडक्शन, और ये है इसका मीनिंग. ऑनलाइन एजुकेशन स्कूल का बच्चे को भी स्कूल के टीचर को भी करवाना है, और पेरेंट्स भी करवा सकता है, दैट इज हिज डिस्क्रिप्शन. बट देर आर सर्टन प्रॉज एंड कॉन्स कि ऑनलाइन एजुकेशन से आईज इंपैक्ट होती हैं, और एडिक्शन हो सकता है, बच्चा मिसयूज कर सकता है, मॉनिटरिंग ट्रबल हो सकता है, वो सारा डिस्कस करेंगे हम. लेकिन ये मेन रेलिवेंस ये था.
अनुराग भारद्वाज ने बोलना स्टार्ट किया, अच्छे पॉइंट बोले अनुराग भारद्वाज ने, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल। तो अनुराग जल्दी में नहीं बोलना है, आराम आराम से चबा चबा के बोलो कि फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर कंसिडरेशन सम ऑफ द important points which actually school can only provide, like extracurricular activities are there, like playing sports, cultural, so that cannot be imparted in the online education. Communication skills are developed while speaking only, so the group is required. तो अनुराग भारद्वाज ने वो पॉइंट बोले एंड दैट वाज ओके। विजय, तुम्हारा पास जो स्पीड है वो बहुत फास्ट है, बोलना तुम स्टार्ट कर दिए, लेकिन अभी पहले तो तुम बोल ही नहीं पा रहे थे, अब तुम बोलना स्टार्ट कर दिए, अब तुम रुक नहीं पा रहे हो, राइट? अब तुम बहुत फास्ट ट्रेन में बोल रहे हो। पहले तुम्हारी मालगाड़ी थी, अब तुम्हारी शताब्दी हो गई है, नॉर्मल ट्रैक पे ट्रेन को दौड़ाना पड़ेगा तुम्हें विजय। अभी तुम्हें बहुत ज्यादा फास्ट फास्ट नहीं बोलना है, स्लोली तुम्हें बोलना है, सो दैट तुम अपना पॉइंट रख सको विजय। जैसे आपने बहुत से पॉइंट्स बोले जो रेलिवेंट थे, रिलेशन बाकी लोगों के साथ, रिलेशन टीचर्स के साथ, आपके एटिकेट्स आपको सीखने चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए। लेकिन आपने बोला कि एडिक्शन भी हो जाता है, बेसिकली कई बार बच्चे इसको एक्सक्यूज ले लेते हैं ऑनलाइन एजुकेशन को। तो विजय, जो तुम बोल रहे हो बहुत फास्ट बोल रहे हो, और कई बार उनका मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, तुम बोलना क्या चाह रहे हो, तो कंटेक्स्ट समझाना पड़ेगा तुम्हें, नहीं है तुम्हें बड़े ढंग से कंटेक्स्ट बताना पड़ेगा अपना, एंड अकॉर्डिंगली यू आर टू एक्सप्लेन दैट। सो स्पीड थोड़ी सी रिड्यूस करो विजय, और जो बताना चाहते हो उसको ढंग से बता दो, और एक बार एक थीम के ऊपर वर्क करो और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करो। जहां तक विवेक की बात है, विवेक ने स्पोर्ट्स डिसिप्लिन इसकी बात की, सोशल एस्पेक्ट की बात की, रूरल नेटवर्क का प्रॉब्लम की बात की, डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती हैं, और आईज अफेक्ट होती हैं, उसके ऊपर विवेक ने बात किया। अच्छे रेलिवेंट पॉइंट्स दिए हैं विवेक ने, दे आर देयर। सो हर बार आदमी जो एक नया पॉइंट देगा वो नोट हो जाएगा। जैसे विवेक ने डिसिप्लिन स्पोर्ट्स वगैरह की बात कर दी, विजय ने टीचर्स वगैरह के रिलेशंस वगैरह की बात कर दी, अनुराग भारद्वाज ने एक्स्ट्रा करिकुलर कम्युनिकेशन की बात की, रमाकांत ने इनिशिएट किया था। सो इफ यू गेट चांस टू स्पीक अर्ली, तो न्यू पॉइंट्स यू कैन स्पीक। अदरवाइज क्या होगा, जैसे अनुराग है, नॉट अनुराग भारद्वाज बट अनुराग, ही टॉक्ड अबाउट स्पोर्ट्स, लेकिन विवेक पहले ही स्पोर्ट्स की बात कर चुका था। अब अनुराग ने जो स्पोर्ट्स की बात की वो विवेक के बाद की, तो अनुराग के पॉइंट में वो नहीं ऐड होगा, उसने स्पोर्ट्स की बात ऑलरेडी कर चुका था। सो अनुराग, तुम्हें अभी और बोलना है, यू आर टू स्पीक एंड यू आर टू कम आउट। अभी तुम्हारा पार्टिसिपेशन कम है, तुम्हें वो उस चीज को इंक्रीज करना है। उदय ने इंटरनेट डिस्ट्रैक्शन की बात की, सोशल मीडिया की बात की, यूट्यूब की बात की, ये सारी की सारी आपने बात की जो नेगेटिव था कि ऑनलाइन एजुकेशन के नेगेटिव क्या है, उदय ने उस चीज की बात की। उदय, तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन ही बताना है, और तुम्हें थोड़ा ज्यादा बात पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और होलिस्टिकली टॉपिक के बारे में बात करो। नेगेटिव पॉइंट बताने से पहले थिंक ऑफ अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। तो तुमने उसका नेगेटिव एस्पेक्ट पकड़ लिया, नो डाउट ये नया था, पहले इसमें से किसी ने इसके बारे में बात नहीं किया, आप एक अलग डायरेक्शन में इसको ले गए, वो सही था, रेलिवेंट था, लेकिन होलिस्टिकली बोलो, थोड़ा ज्यादा बोलो उदय, अभी पार्टिसिपेशन कम आ रहा है तुम्हारी ओर से। जहां तक बात है शिशिर की, अच्छा बोल लेते हैं। टीचर्स की प्रेजेंस बहुत जरूरी है, टीचर्स अगर देखेगा तो आपको पता लगा लेता है टीचर कि तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, मॉनिटरिंग हो जाती है, ऑनलाइन में नहीं हो पाती है। तो अगेन शिशिर ने बोला कि ऑफलाइन एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन, उसका कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया शिशिर ने। ठीक था, लेकिन टॉपिक कुछ और था। एक्सप्रेशंस, उसने ये बोला कि कुछ सब्जेक्ट्स जैसे नीट जेई की तैयारी जो करनी है उसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन किया जा सकता है। उसको बोलने का तरीका ये था कि देखो, अगर कोई स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट है आपकी, उस स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट को ऑनलाइन एजुकेशन कैटर कर सकती है। जैसे आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो कर सकते हैं, स्कूल में नहीं करवा रहा तो ऑनलाइन एजुकेशन उसके लिए यूज की जा सकती है। यू आर गोइंग टू स्कूल फॉर लर्निंग द करिकुलर, फॉर लर्निंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फॉर लर्निंग सोशल एस्पेक्ट्स। But if you are preparing for something else, I mean, you want to acquire some another skill or preparation for competitive exam, which school may not be imparting you, online education can be taken. उससे एक और पॉइंट निकल के आता है कि जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, जैसे आप जैसे लोग हैं, अभी ग्रेजुएशन में हैं, आप सारे के सारे एजुकेशन ऑनलाइन ले लो, कोई ट्रबल नहीं है, लेकिन जो छोटा बच्चा है वो नहीं ले सकता। जैसे भी आप जीडी जीटी इंटरव्यू ले रहे हो, बेनिफिट कर रहे हो, अब मेरे को मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है, मैं किसी को नहीं पूछ रहा हूँ, आपने रजिस्ट्रेशन किया उसके बाद आप लगाओ ना लगाओ मैं नहीं पूछ रहा हूँ, तो ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुमने पैसा खर्चा तो तुम लोगे, सर्विसेज लोगे। छोटा बच्चा ऐसा नहीं होता, छोटे बच्चे को रजिस्टर करवाया पेरेंट्स ने, वो उसके बाद क्लास ही नहीं अटेंड करेगा, मॉनिटरिंग करनी पड़ जाती है। मैं मॉनिटरिंग थोड़ी कर रहा हूँ, मेरे को क्या पता रमाकांत कितना लगा रहा है, उदय ने कितने जीडी जीटी लगा ली, मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, ना हो तो ना हो, क्या ट्रबल है। तो अजम्पशन, बड़ा बच्चा जो मच्योर है वो लगा लेगा, तो ऑनलाइन का एक ये भी एस्पेक्ट है। एनीहो, बाकी शिशिर अच्छा बोल लेते हैं, सब कुछ है, टॉपिक पहचान नहीं पाए शिशिर, टॉपिक पहचानो, और एक ही चीज पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना। जेई नीट तुम 2-3 बार बोल चुके,
तो तुमने एक बार बोला, फिर तुम्हें लगा लोगों ने सुना, तुम दोबारा बोला, ऑब्जर्वर सुन रहा था कि एक ही पॉइंट पे लगा हुआ है बोलने, तो वैसे नहीं करना। नमन ने ग्रुप एक्टिविटीज की बात की और फॉरेन से अगर कोई एजुकेशन लेनी है इसकी बात नमन ने की, जो नोटिस हुआ ये अच्छा पॉइंट था। लेकिन नमन और नितेश का ट्रबल ये है कि ये दोनों ने वीडियो बंद किया था, जो मैं सुन नहीं पा रहा था। फिर अगर तुम वीडियो बंद करोगे तो मैं तुम्हें फीडबैक दे नहीं पाऊंगा ढंग से। लेकिन सर नमन का जो पॉइंट था एक्चुअली वो एक नोटिसेबल था। सर एक्चुअली ये सिस्टम में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो कैमरा ऑन ही नहीं हो पा रहा है इसलिए। कोई बात नहीं। उसका नितेश ने बोला कि कॉपिंग होता है एग्जाम में, ऑनलाइन एजुकेशन में जो है कॉपिंग होने के चांस होते हैं। लेकिन नितेश पॉइंट कुछ और था, डिस्कशन कुछ और था। रेलिवेंस ऑफ स्कूल्स इन एरा ऑफ। और तुम्हें क्या करना है कि जब तुम जीडी में पार्टिसिपेट करो तो हर कुछ मिनट्स के बाद ये चीज चेक करते रहो कि टॉपिक बेसिकली तुम टॉपिक से डेविएट तो नहीं कर गए हो। क्योंकि होता क्या है, जब डिस्कशन स्टार्ट होता है तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि तुम टॉपिक से दूर जा चुके होते हो, वो नहीं होना चाहिए। तुम्हें बार बार टॉपिक की तरफ अपने आप को लाना कि यार मैं टॉपिक से दूर तो नहीं जा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं डिस्कशन करते करते दूर निकल गया। वापिस आओ टॉपिक के पास, वापिस आओ। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू इट। तो ये आप लोगों का ये था। तो इसमें ऑब्वियसली रमाकांत अच्छा बोल लेता है। विवेक विजय ने बोलना स्टार्ट किया, बोलने की ट्रबल नहीं है, लेकिन अब विवेक को ढंग से बोलना सीखना है। शिशिर अच्छी बात कर लेते हैं, शिशिर का ओवरऑल ठीक है, टॉपिक नहीं पहचान पा रहे हैं, टॉपिक नहीं पहचाना। अनुराग भारद्वाज ने अच्छा बोल लिया। रमाकांत, अनुराग भारद्वाज, शिशिर आपने अच्छी बात की है। और विवेक ने भी अच्छा बोला है। अगर मेरे को पास करना होगा तो विवेक, रमाकांत, शिशिर और अनुराग भारद्वाज को इसमें पास करूंगा। बॉर्डर पे रहेंगे विजय, बॉर्डर पे रहेगा उदय, ये दोनों बॉर्डर पे रहेंगे। और अनुराग, नमन, नितेश ये जो हैं ये रेड साइड में चले जाएंगे। क्योंकि या तो मैं इनको ऑब्जर्व नहीं कर पाया या इन्होंने कब बोला है, तो ये रेड साइड में चले जाएंगे। तो ये क्लियरली ग्रीन है, क्लियरली रेड, और बाकी बॉर्डर पे हैं। तो इस तरीके से मेरा आपको इनपुट रहेगा। एनीथिंग यू वांट टू आस्क और टेल नाउ? सर मैं पूछना अनम्यूट चाहता करो हूँ। विजय, अनम्यूट करो। सर मैं पूछना चाहता हूँ। सर पिछली बार भी मैंने आईओसीएल का दिया था, तो उसमें क्या हुआ था कि शुरू के 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर ही मेरे जो जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे वो सारे के सारे बोल लिए गए थे। तो ऐसे में क्या करना होगा सर? देखो, आपको दूसरों के साथ सुन के बहुत ढंग से बात करनी है। जैसे आज भी शायद आप ही थे जिसने एक पॉइंट, पता नहीं रमाकांत का, या कल की बात है, मेरे को आज की बात याद है। आपने को पॉइंट पकड़ा रमाकांत का और आपने डिस्कस किया कि रमाकांत आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। आज हुआ था, कब हुआ था वो बात? आज मैंने बोला तो सभी को। हाँ, आज आपने क्या, रमाकांत को पॉइंट दे रहा था। और फिर आपने उसी पॉइंट को आगे पकड़ लिया था। आपने बोला था रमाकांत तुम्हारा पॉइंट अच्छा लगा, मैं इसमें आगे डिस्कस करना चाहता हूँ। लोगों ने सुना नहीं वो बात, लेकिन वो ठीक है, उस डायरेक्शन में आगे चलते जाओ। दूसरों से आइडिया लो और डिस्कशन करो, क्या ट्रबल है उसमें? ओके। तो मेरे सर नेट प्रॉब्लम है सर, एक बार सर मेरा नेक्स्ट पॉइंट बता दीजिए सर। नहीं, तुम जल्दी बात मत करो ना, जल्दी जल्दी मत बोलो। और जो पॉइंट है वो ढंग से समझाओ, एक एक वर्ड मत बोलो। और कोई भी चीज बोलने से पहले तुम उसको सिस्टमेटिकली बोलो। ऑनलाइन को एज अ एक्सक्यूज यूज करते हैं बच्चे, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। इसको बोलने का तरीका अलग है कि बच्चों की मॉनिटरिंग बहुत अच्छी नहीं हो सकती ऑनलाइन पे, एंड सम टाइम दैट गेट्स मिस यूज। प्रोफेशनली बोलने का तरीका अलग है। यहाँ पे कोई हमारा डिस्कशन थोड़ी हो रहा है, तुम एक बोर्ड रूम में बैठे हो, डिस्कशन कर रहे हो, तो बच्चे एक्सक्यूज देते हैं, बच्चे ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, नहीं बोलना। आपने बोलना मॉनिटरिंग ट्रबल है, उस तरीके से बोलो। और बहुत फास्ट फास्ट मत बोलो, आराम आराम से विजय बात करो। बोलना स्टार्ट किया है तुमने, लेकिन अभी फास्ट बोल रहे हो बहुत। हाँ जी, नेक्स्ट। एनी अदर क्वेश्चन? सर जैसे ओके सो, मेरा एक हाँ पॉइंट था, हाँ। सर जैसे ही मेरा एक पॉइंट था, अब वो खत्म हो गया और बिल्कुल सब शांत थे। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? और वैसे इतने जो पॉइंट सोचे थे वो शुरुआत में ही खत्म हो गए थे। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड लिसन टू अदर्स। ये सारी चीज प्रैक्टिस से आती है। ओके सर। जितना तुम यस प्रैक्टिस सर। करोगे तुम्हारा बोलना स्टार्ट होगा, तुम बोलना स्टार्ट करोगे। एक पॉइंट था, पहला जीडी था, विजय ने मुंह ही नहीं खोला, पूरी जीडी में चुप बैठा रहा। दूसरे जीडी में थोड़ा सा खोला, अभी अब ये बिल्कुल बोल रहा है, फास्ट बोल रहा है, बिल्कुल बार पार्टिसिपेट कर रहा है। अब तीसरी स्टेज आएगी, विजय बहुत अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से बोलना स्टार्ट कर देगा। प्रैक्टिस से होता है यार, मतलब इट कैन नॉट बी वन डे, वन जीडी, टू जीडीज। आई थिंक यू नीड टू प्रैक्टिस, राइट? चलो प्रैक्टिस करो आप अपना। जीडी से पहले 5 5 से 10 जीडी जीटी करके जाना, सो तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाए, एटलीस्ट इतना हो जाए तुम उसमें से एलिमिनेट ना हो, राइट? ओके।